Yes, now we are going to start with problem number 10. Open page number 40. Take pencil in your hand. We are going to mark while reading. Nilima Traders purchased furniture for rupees 20,000 on 1st April 2006. Okay, so underline 20,000 and 1st April 2006. Additions are made to the furniture on 30th September 2007 for rupees 10,000. So underline 30th September 2007 and amount 10,000. On 31st December 2009, the furniture purchased on 1st April 2006 was sold for rupees 7,000. So underline 31st December 2009 and 1st April 2006 and amount 7,000. Depreciation is charged at 10% on fixed installment method. So underline rate, that is a 10%, and fixed installment method, that is the name of the method. The firm closes its books at the end of the financial year. Underline financial year. Prepare furniture account for 4 years. See students, again we do have financial year and they are asking us to prepare for 4 years, right? So first year will be 1st April 2006 to 31st March 2007. This is going to be our first year. Second year will be 1st April 2007 to 31st March 2008. Third year will be 1st April 2008 to 31st March 2009. And fourth year will be 1st April 2009 to 31st March 2010. We need to prepare accounts for these 4 years. Okay. Now because 4 years are there, we need to start furniture account. Okay. Divided into 2 parts, debit and credit. Okay. So let's prepare first format. First column will be of date, second column will be of particulars, third column will be of JF, that is a journal folio, fourth column will be of amount. Okay, again here date, particulars, JF and amount. Okay, now our format is ready. First year 2006-2007 हमारा first year है 2006-2007. Okay, now what are they saying is, see, Nilima Traders purchased furniture रुपीज़ 20,000 ऑन 1st April 2006. अभी ये ईयर शुरू कब हो रहा है? ऑन April 1st our year is getting commenced. So furniture is coming in. So entry will be furniture account debit to bank account. At what price we are purchasing? We are purchasing for rupees 20,000. Right? उन्होंने कहा है कि 1st April 2006 को we are purchasing asset for rupees 20,000. Now what is the next line? Additions are made to the furniture on 30th September 2007. See, हम लोग और एक मशीन और एक फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, बट व्हेन आर वी परचेजिंग दैट? ऑन 30th September 2007. हमारा ये ईयर कब खत्म हो रहा है? March 31st को ही हमारा ईयर खत्म हो रहा है. So on March 31st के पहले आर वी परचेसिंग एनी फर्नीचर? नो. तो हम लोगों ने अप्रैल से लेके मार्च तक फर्नीचर को 12 मंथ्स यूज़ किया है, बिकॉज वी यूज्ड इट. ओके, फर्नीचर का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, उसे कहते हैं डेप्रीसिएशन. नाउ वी नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट. ओके, वर्किंग नोट नंबर 1. व्हाट इज दैट? डेप्रीसिएशन. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, डेप्रीसिएशन of furniture 1, because we know that we are purchasing 2 furnitures, right? See, what are they saying? What is the price? 20,000.
into what is the rate of depreciation? 10% means 10 by 100. This 0 will get cancelled, this 0 will get cancelled. So rupees 2000 per annum will be the depreciation amount. So here I will write 2000. Now year के स्टार्टिंग में फर्नीचर का वैल्यू था 20,000 रुपीज़ जब हम लोगों ने परचेज़ किया था। साल भर हम लोगों ने वो मशीन को यूज़ किया, सो वैल्यू इज़ गेटिंग डिक्रीज्ड बाय 2000, सो वैल्यू विल बिकम 18,000. ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट ईयर. ओके, वी आर डन विथ आवर फर्स्ट ईयर. नाउ व्हाट इज आवर सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर इज 7 and 8. Second year is 7 and 8. Again, last year's closing balance will become this year's opening balance. To balance brought down will be 18,000. अभी यहाँ पे देखो students, on 30th September, see what line they have used. Additions are made to the furniture on 30th September 2007 for rupees 10,000. मतलब in this year we are purchasing additional machine. कब? On September 30th. So here I will write to bank account. जब हम लोग मशीन या फर्नीचर परचेज करते हैं, it will appear always at debit side. कितने रुपीस को? 10,000 को. अपार्ट फ्रॉम इट हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है. So on March 31st again value will get decreased or depreciated. Okay, now see how many machines we are having. Two machines, sorry, two furnitures, not machines, furnitures, I'm sorry. तो अभी हमारे पास दो फर्नीचर्स है, राइट? एक फर्नीचर हम लोगों ने एंटायर ईयर यूज़ किया है, अप्रैल से लेके मार्च तक, दैट इज़ अ फर्स्ट फर्नीचर. उसका वैल्यू कितने रुपीज से कम होगा? 2000. ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट depreciation of furniture 2 or depreciation for furniture 2. Okay, what is the price? Price is 10,000. What is the rate? 10%. Okay, so 1000 per annum. तो depreciation कितना है? 1000 per annum. See, 12 months के लिए depreciation है 1000. पर अभी इस ईयर में आर वी यूजिंग फर्नीचर फॉर 12 मंथ्स? नो, हम लोगों ने परचेज कब किया है? सितंबर. वो भी सितंबर लास्ट डे. तो सितंबर वी कैन नॉट कंसिडर. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च हम लोगों ने फर्नीचर सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही यूज़ किया है. तो सी, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्नीचर 12 मंथ्स यूज़ करती हूँ तो फर्नीचर का वैल्यू 1000 रुपीज़ से कम हो रहा है. अगर मैं 6 मंथ्स यूज़ करूँगी तो कितने रुपीज़ से कम होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 into 1000 divided by 12. So amount will be 500 for 6 months. Okay. So here I will write 500. So total will be 2500. Okay. Apart from it हमारे पास कुछ भी नहीं है. Okay. 28,000. Okay. So at the end March 31st 2008 को बैलेंसिंग फिगर विल बी 25,500, right? 25,500. We are done with our second year. Now third year क्या है? 2008 to 2009. 2008 to 2009. Okay. Here I am writing April 1st. To balance brought down. Last year's closing balance will become this year's opening balance 25,500. अभी यहाँ पे देखो students, what are they saying is on 31st December 2009, okay, the furniture purchased on 1st April 2006 was sold for rupees 7,000. See, कब हम लोग मशीन सेल कर रहे हैं? दिसंबर 2009 को सेल कर रहे हैं. वेराज मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च 31st को ही मेरा ईयर खत्म हो रहा है. सो इन थर्ड ईयर वी आर नॉट सेलिंग एनी फर्नीचर, राइट? सो सिंपली हम लोगों ने दिस ईयर फर्नीचर को, दोनों भी फर्नीचर को बस यूज़ किया है बिकॉज वी आर यूजिंग अवर furniture value is going to get decrease.
नाउ फर्स्ट का डिप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन कितना है 2000, सेकेंड फर्नीचर का कितना है पर एनम का, इट इज़ 1000, ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा 3000. नाउ हियर 25,500, here also I will write 25,500. Here on March 31st, by balance carry forward will be 22,500. Okay, now we are done with our third year as well. अभी फोर्थ ईयर ना थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज अलग है या डिफिकल्ट है, यू कैन से नॉट मच डिफिकल्ट, थोड़ा सा हटके है जो हम लोगों ने पहले नहीं किया है. तो यहाँ पे देखो 2009, 2010, 2009, 2010, हमें ना हर एक चीज़ स्टेप वाइज ही करनी है. तो समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो बिकॉज ये थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, नॉट मच. तो अगेन लास्ट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम दिस ईयर्स ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500. मेरा ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल 1 को, अप्रैल 1, 2009 को माई ईयर इज़ गेटिंग स्टार्टेड, तब मेरे पास 22,500 रुपीज़ का फर्नीचर अवेलेबल था. नाउ December 31st, okay, what are they saying? On 31st December 2009 we are selling the machine, right? Purchase करते हैं तो we are writing it at debit side. Whenever we are selling we will record it at credit side. So December 31st by bank account. See, जब हम लोग परचेज करते हैं we are recording at debit side. Whenever we are selling we are recording at credit side. So I am writing by bank. अभी यहाँ पे देखो हमारे पास दो फर्नीचर है, तो एग्जैक्टली कौन सा फर्नीचर हम लोग सेल कर रहे हैं? दे हैव सेड दैट फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2006 वॉज सोल्ड फॉर 7,000. ये 20,000 रुपीज़ का जो भी फर्नीचर है हम लोग कितने रुपीज़ में बेच रहे हैं? 7,000 रुपीज़ को वी आर सेलिंग ऑफ, राइट. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सी इसका मतलब अप्रैल से लेके दिसंबर तक हम लोगों ने वो फर्नीचर क्या किया है? यूज़ किया है. दैट वी विल डू लेटर. व्हेनेवर वी आर सेलिंग, okay, whenever we are selling furniture either we will get profit or we will suffer from loss. Okay, यहाँ पे देखो, यहाँ पे I will write profit or loss on sale of furniture. Now students, you need to be little alert. Okay, what is the formula here? Here it's first original cost. What is the original cost of furniture? 20,000. Okay, less accumulated depreciation. accumulated का मतलब मैंने आपको कहा है total depreciation. हम लोगों ने वो जो भी फर्नीचर है वो हम लोगों ने टोटल 4 years यूज़ किया है, राइट. फर्स्ट ईयर 2006-2007 में हम लोगों ने पूरा साल पूरा साल फर्नीचर यूज़ किया है. सो डिप्रिसिएशन वॉज 2,000. ओके, 2007-2008 में ओके हम लोगों ने पूरे अगेन एंटायर ईयर हम लोगों ने वो यूज़ किया है. सो डिप्रिसिएशन वॉज 2,000. 2008-2009 में भी हम लोगों ने वो पूरा यूज़ किया है. सो डिप्रिसिएशन विल बी 2,000. बट 2009 और 2010 में पूरा साल भर हम लोगों ने डिप्रिसिएशन पूरा एंटायर ईयर वी डिडंट यूज़ दैट फर्नीचर, right? So we cannot charge depreciation for 12 months. We have to calculate now. अप्रैल से लेके दिसंबर, हाउ मेनी मंथ्स हम लोगों ने वो फर्नीचर यूज़ किया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ओके, हियर आई एम शोइंग यू द कैलकुलेशन. फॉर 12 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन इज 2,000, राइट. सो फॉर 9 मंथ्स के लिए हाउ मच? वाई 9 months? Because in the last year we are using furniture only for 9 months, right? So here I will do, students pay attention, 9 into 2,000 divided by 12. Okay, you will get amount 1,500. I'm sorry. Okay, depreciation 9 months का कितना होगा? 1,500. So here I will write 1,500. So accumulated depreciation कितना होगा? 7,500.
Accumulated depreciation will be 7,500. So what will be the present value? 20,000 minus 7,500. Total value will be 12,500. Okay. But at what price we are selling? We are selling at 7,000. मतलब 12,500 का फर्नीचर हम लोग 7,000 रुपीज़ को सेल कर रहे हैं, तो वी विल गेट प्रॉफिट और वी विल सफर फ्रॉम लॉस. ऑब्वियसली देयर इज अ लॉस ऑन सेल. ओके, कितना है, कितने रुपीज़ का लॉस हमें हुआ? 5,500 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है. वेयर आर वी सपोज टू रिकॉर्ड दिस लॉस? वी नीड टू रिकॉर्ड दिस लॉस ओवर हियर. December 31st बाय P&L in bracket राइट लॉस. कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है? 5,500 रुपीज़ का लॉस हुआ है. नाउ अगेन ऑन March 31st we need to charge what? Depreciation. Okay, we need to show depreciation because value क्या होगा? कम. नाउ फर्स्ट मशीन का डिप्रीसिएशन, बिकॉज हम लोगों ने 9 मंथ्स यूज़ किया है, डिप्रीसिएशन कितना होगा? 1,500, बिकॉज 9 मंथ्स ही हम लोगों ने वो यूज़ किया है. वेराज सेकेंड फर्नीचर हम लोगों ने एंटायर ईयर यूज़ किया है, तो सेकेंड ईयर का डिप्रीसिएशन होगा 1,000. सो टोटल विल बी 2,500. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 22,500. Here I will write 22,500. Here on March 31st by balance carry forward will be, अभी आपको ये सारी चीज़ें you need to subtract, you will get amount 7,500. Okay, see, then I will just do the beginning of 5th year, that is 10 and 11. April 1st to balance brought down, last year's closing balance will become this year's opening balance 7,500. This was problem number 10 students. Okay, see, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. why this sum is complicated? फर्स्ट ईयर हम लोग हमेशा करते थे वैसे ही है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक सारी चीज़ें नॉर्मल है, देयर इज़ नॉट मच डिफ़िकल्टी. फोर्थ ईयर से आपका सर्कस शुरू होगा. ओके, वाई? बिकॉज फोर्थ ईयर में हम लोग ईयर के स्टार्टिंग में और लास्ट डे ऑफ द ईयर हम लोग फर्नीचर सेल नहीं कर रहे हैं. ओके, हम लोग फर्नीचर सेल कर रहे हैं इन बिटवीन द ईयर. फर्स्ट स्पीड ब्रेकर. सेकेंड स्पीड ब्रेकर वॉज, हमारे पास 2 फर्नीचर है, दोनों में से एक ही सेल कर रहे हैं और एक हम लोग फर्नीचर को नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं फोर्थ ईयर अगेन आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे देखो, लास्ट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम दिस ईयर्स ओपनिंग बैलेंस. इन 2009-2010 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 22,500 का. इन दिस ईयर हम लोग क्या कर रहे हैं कि December 31st 2009 को हम लोग एसेट को सेल कर रहे हैं. तो सी, व्हेनेवर वी आर सेलिंग इमीडिएटली आई एम राइटिंग 7,000. हमें पता है कि अगर हम लोग एसेट को सेल कर रहे हैं, एक तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा. ओके, आई एम सॉरी. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट? हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. अभी ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जितने भी साल आपने वो एसेट का यूज़ किया है, उतने साल आपके एसेट का वैल्यू डिक्रीज होते गया है. तो ऑल दोज ईयर्स का डेप्रिसिएशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू विल गेट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ऐड करना है, देन यू विल गेट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अभी यहाँ पे देखो, ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000 रुपीज़ वॉज द प्राइस ऑफ द फर्नीचर. नेक्स्ट उसमें से हम लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. सी, हम लोगों ने एसेट को यूज़ किया है, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने कंप्लीट 12 मंथ्स यूज़ किया है, सेकेंड ईयर में भी हम लोगों ने 12 मंथ्स यूज़ किया है, और थर्ड ईयर में भी हम लोगों ने 12 मंथ्स यूज़ किया है. सो बिकॉज 3 ईयर्स हम लोगों ने एसेट को एंटायर ईयर यूज़ किया है, डेप्रिसिएशन वॉज अ कॉन्स्टेंट 2,000, 2,000 एंड 2,000. लेकिन फोर्थ ईयर में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन सिर्फ 9 मंथ्स ही यूज़ किया है,
इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये एडिशन किया है। 12 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन है 2000 का 2000 रुपीज़। सो फॉर 9 मंथ्स इट विल बी हाउ मच? वी गॉट द अमाउंट डिप्रिसिएशन 1500। सो 2009-2010 का डिप्रिसिएशन होगा 1500। क्यों 1500? बिकॉज 4th ईयर हम लोगों ने फर्नीचर सिर्फ 9 मंथ्स ही यूज़ किया है। तो इसका टोटल डिप्रिसिएशन कितना है? 7500। 20,000 में से 7,500 अगर आप माइनस करोगे यू विल गेट अमाउंट 12,500। मतलब आज के दिन में और इन दिस ईयर द वैल्यू ऑफ दैट फर्नीचर इज 12,500 बट यू आर सेलिंग इट फॉर ₹7,000। आपको सेल करके कितने रुपीज़ आए हैं? 7,000। पर आपको कितने रुपीज़ आ सकते थे? 12,500 रुपीज़ आपको आ सकते थे। तो यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉस। So here I will write by P&L. Loss will always come at credit side. So by profit and loss account in bracket I have written loss. कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है? 5,500 रुपीज़ का we got a loss. Okay. अभी यहाँ पे सीन क्या है स्टूडेंट्स? March 31st तक we are going to have we are having no other furniture with us, right? So on March 31st we need to calculate depreciation, right? तो depreciation first machine का first furniture का depreciation होगा 1500 because we use that furniture for 9 months. Second furniture we used for 12 months, so depreciation will be 1000. So this year में depreciation total depreciation will be 2500. Then we will do the balancing part. 22,500 minus 7,000 minus 5,500 minus 2,500. You will get the balancing figure, that is a 7,500. This balance again last year's closing balance will become next year's opening balance. Okay. So this was our problem number 10. From the next class we are going to start with the new method, that is a diminishing balance method or written down value method. Thank you.